Once again, Assalamu alaikum and good afternoon, everyone. Okay, and I think last time in the last session we have started with this NS experiment, that is network simulator. And as I told you that your network simulator is a language, or we can say um, technique from which you can animate the things, you can animate the network activities. Okay, and I think we have gone through this particular PDF file, जो slide थी वो मैंने आपको बताया था. तो एक बार गो थ्रू करते हैं 2 मिनट के अंदर, और उसके बाद में हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो दिस इज द फाइल विच आई शोन यू लास्ट टाइम, दैट इज इंट्रोडक्शन टू द नेटवर्क सिमुलेटर, which is basically start with हम लोग, which is the most popular simulator among networking researchers. This is open source, this is free. Okay, and the programming language which is used, the programming language which is used for doing the animation and all that is called as TCL, that is tool command language. Okay, and with the help of this language we can specify the scenarios and event. As I told you what is scenario and what is event. तो scenarios क्या होते हैं? Basically, for example, four computers are connected with each other. Four computers are connected with each other. This is the scenario. Okay, and the computer number one is sending some messages to computer number two, and computer number two is receiving those, कंप्यूटर नंबर टू इज रिसीविंग दोज पैकेट्स. सो दैट इज द इवेंट. ओके, तो ये है आपके सिनेरियोज और ये है आपके इवेंट्स. ओके, तो यू कैन जस्ट इमेजिन द डिफरेंस बिटवीन द सिनेरियोज एंड इवेंट्स. ओके, आई होप सो दिस वाज क्लियर टू यू. And this particular NS2, that is the 2 is the version. So network simulator can be used for both, that is wired and wireless network both. ओके, तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसको बताने के लिए हमको इतना सारा कार्यक्रम करना पड़ रहा है. तो होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हो. और लास्ट टाइम हम मैंने आप लोग को थोड़ा सा बेसिक बताया भी था. ओके, सो NS, this is the basic for TCL, that is tool command language, how to create variables. Okay, and how to use it, how the functions and expressions are used. These are the conditional statement, these are the decision making statement. Okay, while then these are the procedure arrays and all that जो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखे थे. उसके बाद में हम यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किए थे कि हाउ टू क्रिएट अ सिमुलेटर एंड how we can create the node, how we can create the link. Okay, सब कुछ हम लोगों ने देखा था. In step one we created a simulator object. Okay, that is by set ns. This is the new simulator we have shown in the square bracket. So this is the creation of the new simulator. देन उसके बाद में स्टेप नंबर 2 के अंदर हम लोग को ट्रेस फाइल ओपन करना होती है, बिकॉज वॉट एवर इज हैपनिंग, वॉट एवर सिनेरियोज आर हैपनिंग, सो सॉरी वॉट एवर सिनेरियोज एंड इवेंट्स आर हैपनिंग, सो दैट हैज टू बी रिकॉर्डेड, that has to be traced. So this tracing is to be done via step number 2. Coming to the step number 3. Okay, step number 3 के अंदर this is the scenario in which we are having two nodes. Okay, remember मैंने आप लोग के लास्ट टाइम बताया था. ठीक है, so these are the two nodes in my scenario. In my scenario there are two nodes, that is n0 and n1. Okay, तो n0 n1 को क्रिएट करने के लिए what you have to do, you need to use the कीवर्ड दैट इज सेट. ओके, तो सेट हम लोग यूज करते हैं, और अगर उसको उस पर्टिकुलर वेरिएबल को यूज करना है तो डॉलर यूज करते हैं. दैट वी हैव सीन इन द लास्ट सेशन ओनली. तो सेट n0 and set n1, so we have created only two nodes, so set the n0 n1. Okay, and we are just specifying that these are the ns node, that is network simulator के nodes हैं दोनों. ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग को क्या करना है, दोनों नोड्स के बीच में लिंक एस्टैब्लिश करनी है. ठीक है, so whenever we are establishing the link between two nodes, then we need to mention few parameters. Okay, and those parameters are stated over here, like $ns. बाद में कौन सी लिंक है भाई, तो डुप्लेक्स लिंक है. ठीक है, ना सिंगल लिंक है, ना सिंप्लेक्स है, ना मल्टी डुप्लेक्स है, कुछ भी नहीं है, बल्कि डुप्लेक्स लिंक हम लोगों ने मेंशन किया है. देन किन दो नोड के बीच में आपको लिंक इस्टेब्लिश करना है, दैट वी हैव मेंशन n0 और n1 के बीच में हमको लिंक इस्टेब्लिश करना है. ठीक है, तो n0 n1 दोनों के बीच में हम लोग को लिंक इस्टेब्लिश करना है. उसके बाद में दोनों के बीच में जो स्पीड होंगी वो क्या होंगी, जो लिंक की जो स्पीड रहेंगी वो रहेंगी 1 Mbps. तो यहाँ वो मेंशन किया. एंड आफ्टर दैट दो उनके बीच में जो पैकेट्स का जो डिले होगा वो क्या होगा, दैट इज 10 मिलीसेकेंड. उसके बाद में अगर पैकेट अगर एक्स्ट्रा आ जाते हैं और हमारे पास में हमारे क्यू में हमारे बफर में जगह नहीं है, तो क्या पॉलिसी अप्लाई करेंगे. ठीक है, द पॉलिसी विल बी ड्रॉप टेल, मतलब कि टेल साइड से यू कैन स्टार्ट ड्रॉपिंग द पैकेट्स इफ द
waiting area is full. Okay, if the buffer is full, if the queue is full, then you can drop the messages from, sorry, you can drop the packets from the tail side. Okay, so that we have specified. तो फिर इसके बाद मैंने आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बताया था, ठीक है। सो इन दिस वे द सिमुलेटर हैज बीन क्रिएटेड। उसके बाद में आपकी ट्रेस फाइल है, ओपन करके आपने इसको क्या किए, आपने ट्रेस सॉल्व किए, ठीक है। सो दिस विल बी कॉमन फॉर ऑल द प्रोग्राम्स, ओके। एंड हाँ, यहाँ तक पूरा आपका कॉमन रहेगा, ये पूरा आपका कॉमन रहेगा, ठीक है। यहाँ तक कुछ भी चेंज नहीं होगा, हर प्रोग्राम में यहाँ तक आपका सेम रहेगा। इसमें हम लोग ने क्या किए, वी हैव स्टेटेड अ फिनिश प्रोसीजर। और देखो आपका फिनिश यहाँ पे कॉल हुआ है, आपका फिनिश प्रोसीजर यहाँ पे कॉल हुआ है। जब फिनिश प्रोसीजर कॉल जैसे हम लोग अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करते हैं, एंड यू ऑल नो दैट आल्सो, at one place we create a function. In that particular function we state all the tasks which we need to perform, okay। तो हम लोग वो मेंशन करते हैं, और फिर हमारे जब हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन कॉल होगा, उसमें जितने टास्क है सारे के सारे एग्जीक्यूट होंगे। तो दैट इज द कॉमन थिंग, ओके, जो हम लोग सब लोग जानते हैं, वही चीज़ यहाँ पर भी हुई है। सो दिस इज द प्रोसीजर जिसका नाम है फिनिश, ओके। हम लोग उसको फंक्शन बोलते हैं, तो ये इसने इसका नाम उसने प्रोसीजर रखा है, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉक शॉर्ट कीवर्ड, देन नेम इज फिनिश, ओके। एंड इसके अंदर हम लोगों ने एनएस को ग्लोबल डिक्लेयर किया है, फ्लश ट्रेसेस, एनएस में जितना भी है वो फ्लश कर रहे हैं। फिर डॉलर एफ मतलब ये आपकी जो ट्रेस फाइल है इसको क्लोज कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। तो ये सब काम आप कब करवाओगे, जब आपका सारा काम हो जाए, जब आपका सारा काम हो जाए, आपने नोड क्रिएट कर लिए, नोड के बीच में की लिंक आपने क्रिएट कर लिए, और उसके बाद में 5.0 में मतलब कि स्टार्ट कहाँ से होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। ऑलवेज रिमेंबर, एनएस को हम लोग ने कहाँ से स्टार्ट किए, जीरो से स्टार्ट करेंगे। और फिनिश प्रोसीजर कब कॉल कर रहे हैं, यू कैन सी ओवर हियर, फिनिश प्रोसीजर को कब कॉल कर रहे हैं हम लोग, 5.0 मतलब कि 5 सेकंड आपका ये एनिमेशन चलता रहेगा, ठीक है। जीरो से स्टार्ट होगा, 5 तक चलेगा, और उसके बाद में जाके फिनिश प्रोसीजर कॉल होगा। जब फिनिश प्रोसीजर कॉल होगा तो ये सारा काम हो जाएगा। लास्ट में हम लोग को क्या करना है, यूजिंग कीवर्ड रन करना है, ठीक है। तो अगर ये रन नहीं करेंगे तो आपके ट्रैफिक आपको रन होते हुए नहीं दिखेंगे, ठीक है। सो दिस वाज द सिंपल थिंग जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, ठीक है। अब मैंने एक्चुअली यहाँ पर अभी तक उबंटू स्टार्ट नहीं किया हूँ। So this is my Ubuntu application which I have installed in on my Windows PC, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना था मैं भी भूल गया, देखो। अच्छा, MNT-C, हाँ, सी में मेरा NH2 के फोल्डर, हाँ चलो, मेरे सारे प्रोग्राम्स हैं एक्चुअली, ओके। ये विंडोज प्लेटफॉर्म होने की वजह से इतना सब कार्यक्रम करना पड़ा है, वरना ये सब नहीं करना पड़ता है, सब कमांड वमांड मार के रखना पड़ता है। तो मेरा फर्स्ट प्रोग्राम मैं रन करता हूँ, आप लोगों को रन करके बताया भी था कि एज यू रन योर जावा एप्लीकेशन, जावा प्रोग्राम रन करते हैं तो व्हाट वी डू, जावा सी स्पेस फाइल नेम जस्ट फॉर कंपाइलिंग द प्रोग्राम, जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, ठीक है। तो कंपाइलेशन होता था, फिर आपको एग्जीक्यूट करना होता था तो जावा स्पेस फाइल नेम, ठीक है। तो ये ऐसा आप लोग जावा के प्रोग्राम रन करते हैं। पाइथन के रन करना है तो पाइथन स्पेस फाइल नेम डॉट पी वाई, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड प्रोसीजर। तो वैसे ही आपके एनएस के प्रोग्राम रन करने के लिए आपको एनएस स्पेस फाइल नेम का नाम है आपका, मैं फर्स्ट वाली मेरी फाइल रन कर रहा हूँ जिसका नाम दिया हूँ मैंने वन डॉट PCL is the extension as Java and Python as having Java and PY as the extension respectively. Okay, so my file extension is TCL. The name of the file is one. Okay, so this is my first program. जैसे मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ। अच्छा, एक और चीज़ करना थी जो मैंने शायद नहीं किया हूँ। एक्समिंग सर्वर स्टार्ट करना था मुझे। कहाँ है भाई साहब, दो मिनट, कहाँ गया हूँ, ठीक है।
एक्चुअली मेरा सर्वर चालू नहीं था। मैंने आपको बताया ना कि हमारा एक्चुअली विंडोज़ है, इसके लिए सारा कार्यक्रम हमको करना पड़ रहा है। इफ आई वर ऑन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम देन इतना सब नहीं करना पड़ता, ठीक है। चलो बहरहाल कोई बात नहीं, अब जब कर ही रहता हूँ कोई इशू नहीं। सो दिस इज द नैम आउटपुट, यू कैन सी आउट डॉट नैम में आपको आउटपुट मिला है। इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूँ, यू कैन सी यहाँ पर मैंने एक्चुअली 3 बनाया था, ये मैंने आपको अभी नहीं बताना चाहिए था लेकिन मैंने आपको बता दिया। ये वाला सिंपल मैंने आपको रन करके लास्ट टाइम बताया था, आई थिंक आपको मैंने बताया भी होगा। सी ये वाला हमारा प्रोग्राम था, इसको मैं काम करता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल ऑल कंट्रोल सी, इसको एक काम कर लेता हूँ, सेव कर दूँ मैं। कंट्रोल सी, और मैंने जो अपने प्रोग्राम सेव किया हूँ ना वो सी ड्राइव में आपके, देखो ये इसका लोकेशन भी है MNTCNS2, यहीं पर के आसपास। ये सारे मेरे फोन हैं, ठीक है। यहाँ पर एक मैं न्यू फाइल बनाता हूँ, इसको मैं काम करता हूँ, सेव करता हूँ, यहीं पर सेव कर लेता हूँ। तो दिस इज फाइल सेव एज, ठीक है। कहाँ पर कर रहा हूँ, जिस प्रोग्राम के अंदर सी के अंदर NS2 के अंदर, इसको मैं सैम्पल करके सेव कर रहा हूँ, ठीक है। .tcl एक्सटेंशन, sample.tcl सेव किया हूँ मैंने। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, देख लो सैंपल करके चाहिए, इसको ओपन करता हूँ, देख लो। या अच्छा फाइल में क्या, पहले आप देख लो, दिस इज द सिमुलेटर, ठीक है। एवरीवन एवरीवन प्लीज फोकस ऑन ये, ठीक है। यहाँ पर फोकस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज सेट NS, जो मैंने सिमुलेटर बनाया। दिस इज फॉर द ट्रेस फाइल which will be common for all the programs। एंड आफ्टर दैट हमारे पास में है फिनिश प्रोसीजर। तो ये इतना 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 पार्ट आपको कॉमन मिलेगा हर किसी में, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में 2 नोड बनाया हुआ मैंने, ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर मेरी फाइल में बताया, ठीक है। क्या बताया था, 2 नोड बनाना है, लिंक बनाना है और ऑल दैट, ठीक है। सो लिंक हम लोग कहाँ पर है भाई साहब, कहाँ पर है, याद ही नहीं लगा कहाँ पर है। तो मैंने 2 नोड बनाया, सेट N0 N1, 2 नोड बनाया, दोनों के बीच की लिंक जो हम लोग ने वहां पर देखे, लिंक बनाया। और यहाँ पर वहां पर मैंने 5 सेकंड के लिए रन किया था, यहाँ पर मैंने 2 सेकंड के लिए रन किया हूँ। आप चाहे तो उसको 5 सेकंड दोबारा कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही 5 सेकंड कंप्लीट होंगे, आफ्टर दैट दिस विल कॉल द फिनिश प्रोसीजर, और फिनिश प्रोसीजर में सारा काम हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो एग्जिट करेगा सब कुछ, उसके बाद में आपका सिमुलेशन रन हो जाएगा यूजिंग रन, ठीक है। तो ये है सिंपल वाला, इसको मैं काम करता हूँ, आपके सामने रन करता हूँ, ठीक है। सो NS स्पेस, फाइल नेम का नाम है sample.tcl, ठीक है। सो दिस इज माय फाइल sample.tcl। तो इसको मैं रन करता हूँ आपके सामने, जैसे मैं रन करूंगा तो ये रहा आपके सामने आउटपुट, ठीक है। आउटपुट आप लोग देख सकते हैं, आपके पास में 2 नोड मिली, N0 और N1, जिसका नाम 0 और 1 दिया गया था। और इसको आप मूव नहीं कर सकते थे, इसको मूव नहीं, अगर आपको मूव करना है देन आपको यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। Okay, so in case if you want to edit these 2 nodes, then you have to click on this button. You can just move these nodes over and there now, ठीक है। इसको आप यहाँ से यहाँ मूव कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने इसको फिर दोबारा व्यू पे क्लिक करो तो दोबारा ये नॉन एडिटेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैंने देखो ये 0 से लेकर चलेगा 5 तक, इसको मैं अगर प्ले करूंगा तो प्ले भी हो जाए, प्ले तो होगा नहीं वैसे बिकॉज मैंने कुछ डाला नहीं हूँ, देखो कुछ प्ले नहीं हो रहा है बिकॉज हम लोगों ने कुछ डाला ही नहीं है अभी तक, ठीक है। तो सिंपल 2 नोड एंड दिस इज द लिंक, ठीक है। ये लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर शो होगा द बैंडविड्थ इज 1 मेगाबिट्स पर सेकंड एज वी हैव डिस्क्राइब इन द प्रोग्राम। आपको याद है हम लोगों ने प्रोग्राम में लिखे हैं, नहीं यकीन आता तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज 1 Mbps, ठीक है। तो अगर आप इसको चेंज करते हैं तो वो चेंज भी हो जाएगी।
the delay is 10 millisecond. As you can see the delay is 10 millisecond. तो यहाँ पर delay जो आ रहा है वो 10 millisecond आ रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपकी लिंक और ये रहे दो लिंक, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके आगे, ठीक है। 3:20 हो गए, 20 मिनट हम लोग को खाली जो हम लोगों ने पिछला काम किए थे उसको रिवाइज करने में चलेंगे। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज, ठीक है। और एक मेरा है आउटपुट, इसको मैं क्लोज करता हूँ। पहले हम लोग प्रोग्राम समझेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है आई थिंक सो, जिसमें हम लोगों ने 2 नोड बनाए हैं और 2 नोड के बीच में एक लिंक बनाए और प्रोग्राम को रन किए। प्रोग्राम रन हुआ, कोई एनिमेशन शो नहीं करेगा, ठीक है, बिकॉज हम लोगों ने कुछ अभी तक ट्रैफिक डाला ही नहीं है। जब ट्रैफिक नहीं है तो ट्रैफिक दिखेगा कैसे, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग तो ट्रैफिक कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। एवरीवन प्लीज कंफर्म मी दैट वेदर यू हैव अंडरस्टैंड टिल दिस पॉइंट और नॉट। पापा खामोश, पापा 2 मिनट। यस सर। ओके एवरीवन प्लीज लेट मी नो यहाँ तक समझा है क्या नहीं। हम लोगों ने अभी तक कुछ ज्यादा नहीं किया है, सिर्फ 2 नोड बनाए, दोनों को लिंक इस्टेब्लिश करके क्रिएट किया है लिंक, और उसको हम लोगों ने रन करके देखिए, ठीक है। तो रन करना भी अगर आप लोग लिनक्स में करेंगे तो ये सब आपको एक्समिंग और उबंटू टूल ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे आप डायरेक्टली रन करो। लोकेशन पे जाओ, जो लोकेशन पे आपकी फाइल है ns स्पेस filename.tcl रन हो जाएगा रन, ठीक है। तो लिनक्स में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, बट यहाँ पर मुझे इतना सारा सेटअप करना पड़ा, कार्यक्रम करना पड़ा, आई टोल्ड यू। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं कि उन नोड के ऊपर हम लोग ट्रैफिक डालेंगे, तो सो दैट जब पैकेट ट्रांसफर होंगे तो हम लोग को दिखेगा कि हाँ पैकेट ट्रांसफर हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। ओके आगे बढ़ते हैं हमारी ये फाइल के थ्रू, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग को, एडिंग ट्रैफिक नाउ, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड ट्रैफिक। Now we have to add traffic to the link, okay। तो जब तक हम लोग ट्रैफिक ऐड नहीं करेंगे तो तब तक हम लोग को समझ में नहीं आएगा। So we are going to create a UDP agent and अच्छा जैसा एग्जाम मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ, वो एग्जांपल से आप लोग और ज्यादा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। सो इमेजिन करो कि हमारे पास में जैसे कि 2 हमारे पास में ट्रक है, ठीक है। आई एम द ओनर ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कंपनी एंड मेरे पास में 2 ट्रक है, 2 लॉरी है, 2 ट्रॉलर है, जिनकी मदद से मैं गुड्स एंड जो सामान होता है वो एज पर दी ऑर्डर मैं मूव कराता हूँ, ठीक है। सो मैं उसका ओनर हूँ, ओके। तो मेरे पास में 2 ट्रक्स भी है, ठीक है। ये दिमाग में रखो, जब टाइम पड़ेगा मैं आपको एग्जाम्पल का रिलेशन करके बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है हम लोग को, एजेंट्स क्रिएट करना है, ठीक है। इस पर्टिकुलर N0 और N1 के ऊपर क्या करना है हम लोग को, एजेंट्स क्रिएट करना है। एजेंट क्यों क्रिएट करते हैं पहले देखो। अगर हम लोग एजेंट क्रिएट नहीं करेंगे तो ट्रैफिक को हम लोग जनरेट नहीं कर पाएंगे, ट्रैफिक को हम लोग सेंड नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हर ट्रक के ऊपर एक ना एक ड्राइवर आपको अलॉट करना पड़ेगा कि भाई ये ड्राइवर X, ये आपका ट्रक नंबर 1 पे रहेगा और ये ड्राइवर Y ये आपके ट्रक नंबर 2 पे रहेगा, ठीक है। इसलिए तभी तो, क्योंकि जब भी ऑर्डर्स आएंगे आपको बोलेंगे भाई ड्राइवर एक्स को कि चलो आपका ऑर्डर कंप्लीट है, रेडी है, आप माल यहाँ से लेके जाओ वहाँ पे, बिकॉज यू आर द ओनर एंड यू कैन ऑर्डर अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ड्राइवर रखना पड़ेगा। तो इन दैट केस हम लोगों ने ड्राइवर रखा। इन आर केस N0 पे हम लोग को एक एजेंट रखना पड़ेगा जो कि ट्रैफिक को क्या करेगा, सेंड करेगा, ठीक है। सो हियर आई एम क्रिएटिंग अ UDP एजेंट राइट नाउ। तो एजेंट अगर आपको क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करते हैं, अगेन कुछ चीज अगर आपको क्रिएट करना है तो यूज द सेट UDP0 एज अ एजेंट का नाम है UDP0, ठीक है। तो आपने एक एजेंट क्रिएट किया सेट UDP0 एंड यू आर मेंशनिंग दैट दिस इज द न्यू एजेंट अंडर UDP, ओके। आप TCP का भी एजेंट क्रिएट कर सकते हो, नॉट अ बिग डील, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ने UDP का एजेंट क्रिएट किया, ठीक है। तो एजेंट क्यों है, एग्जाम्पल से आप लोग को समझ में आना चाहिए कि जैसे आपके ट्रक के ऊपर एक ड्राइवर कंपलसरी है जो कि क्या करेगा, उसको ड्राइव करेगा। या फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं मैनेजर, चलो एग्जांपल और अच्छा है, एग्जांपल समझो मैनेजर, ठीक है। तो एक मैनेजर को रख दिया भाई ये 5 ट्रक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, ये 5 ट्रक मैनेजर 2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे एंड सो ऑन। तो हम लोग ने मैनेजर क्यों रखा है, सो दैट द मैनेजर कैन मैनेज एंड एक्ट अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स, ठीक है। तो जैसा हम लोगों ने वहाँ पे मैनेजर रखा है वैसे यहाँ पे हम लोगों ने UDP का एक एजेंट बनाया है अपने एक N0 नोड के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एजेंट क्रिएट कर दिया।
अब क्या करना है, उस एजेंट को हम लोग को N0 के साथ में अटैच करना है, ठीक है। मैनेजर का और ड्राइवर का दोनों का बता देंगे भाई देखिए मैनेजर है, और बोलेंगे भाई देखिए ड्राइवर है, ठीक है। तो ड्राइवर विल नो द मैनेजर एंड द मैनेजर विल अंडरस्टैंड द ड्राइवर, ठीक है। तो मैनेजर जब भी कुछ काम देगा तो फिर वो काम उसका करेगा प्रॉपरली, ठीक है। और ड्राइवर जब भी कुछ बोलेगा भाई हो गया मेरा महीना हो गया सैलरी मुझे चाहिए, तो मैनेजर उसकी सैलरी रिलीज करेगा। सो दे विल बी कम्युनिकेटिंग। तो दोनों को अटैच करवाना, दोनों को इंटरेक्ट करवाना बहुत कंपलसरी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, $NS, दिस इज द सिंटैक्स, $NS अटैच एजेंट, ठीक है। अटैच एजेंट, कौन से एजेंट को अटैच करो, डॉलर मतलब कि UDP0 वाले एजेंट को अटैच करो, ठीक है। आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर वेरिएबल, तो क्या लगाऊंगा मैं, डॉलर लगाऊंगा, ठीक है। तो $UDP0 मतलब इस एजेंट को अटैच करो, किसके साथ में अटैच करो, N0 के साथ में अटैच करो। N0 क्या है, मेरा नोड है, ठीक है। तो क्या कर दिया हम लोगों ने, अटैच एजेंट की मदद से हम लोगों ने दोनों को अटैच कर दिया। नाउ दिस UDP0 इज नाउ अटैच विद N0, ठीक है। नाम हम लोगों ने मिलता जुलता रखे सो दैट समझ में आए कि UDP0 किसका एजेंट है, N0 का एजेंट है, ठीक है। UDP0 किसका एजेंट है, N0 का एजेंट। यहाँ पे उसने लिखा नहीं है बट वो है N0 का, ठीक है। तो कैसे एजेंट क्रिएट करना समझ में आया आप लोग को, ओके। ये पहली चीज, आगे बढ़ते हैं। एजेंट तो अभी क्रिएट कर दिए, अब हम लोग को क्या करना है, माल चाहिए। क्या लेके क्या जाएंगे आप, खाली खाली ट्रक तो लेके नहीं जा सकते, ठीक है। मैं हमेशा हर साल ये एग्जांपल देता हूँ, इसके लिए हम कंफर्टेबल विद दैट एग्जांपल एंड विद दैट, और ये इतना कॉमन है कि हर किसी को समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर है कि भाई हमारी N0 नाम का नोड है, और उस पर हम लोग ने एक मैनेजर अलॉट कर दिए, मैनेजर अपॉइंट कर दिए जिसका नाम है UDP0, ओके। तो वो काम हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, कांस्टेंट बेस रेट नाम की एक ट्रैफिक, मतलब एक हम लोग को एक मतलब जिसका जो रेट हो वो कांस्टेंट रेट की एक ट्रैफिक हम लोग को जनरेट करने वाला एक बंदा चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को एक एप्लीकेशन चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक एप्लीकेशन क्रिएट करना है। जैसे हम लोग अब जैसा अपर ट्रक आ गया, ठीक है, ट्रक के पास मैनेजर भी है। अब मैनेजर को क्या करना है, उसको माल वगैरह क्रिएट करना है, उसको माल मतलब जो भी रहेगा, जो भी गुड्स वगैरह रहेंगे उसको मूव करवाना है, और ड्राइवर भी चाहिए। तो हम लोग को बेसिकली क्या चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए। वो एप्लीकेशन क्या करेगा, हमारे ट्रैफिक को जनरेट करेगा। वरना आप दिखाएंगे क्या, आप कुछ नहीं दिखाएंगे जब तक कि आपके पास में कोई ऐसा एप्लीकेशन ना हो जो कि ट्रैफिक को जनरेट करे, तो आप कुछ दिखा नहीं सकते, ठीक है। और वो दिखाने के लिए जनरेट करना जरूरी है, और वो जनरेट कौन करेगा, आपका CBR करेगा, ठीक है। मतलब एक एप्लीकेशन करेगा, उस एप्लीकेशन का नाम हम लोग ने रखा है CBR, ठीक है। CBR का आप लोग सर्च करेंगे तो दिस इज अ कांस्टेंट बेस रेट, ओके। मतलब एक कांस्टेंट रेट की ट्रैफिक जनरेट, 1 सेकंड के अंदर आपने फर्स्ट मतलब 1 सेकंड में एक पैकेट रिलीज किए, सेकंड पैकेट में सेकंड में सेकंड पैकेट रिलीज किए, थर्ड सेकंड में हम लोगों ने थर्ड पैकेट जनरेट किए। तो इस तरीके से आपका कांस्टेंट रेट के हिसाब से वो ट्रैफिक को जनरेट करेगा, ठीक है। तो आपने एक CBR0 नाम का एक एप्लीकेशन बनाया, विच इज अ न्यू एप्लीकेशन अंडर ट्रैफिक, जो कि कांस्टेंट बेस रेट का है, ठीक है। ऐसा उसको मेंशन करना पड़ता है, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ TCL, ठीक है। तो ये हमारा CBR का नया एप्लीकेशन, CBR नया एप्लीकेशन जो कि क्या करेगा, ट्रैफिक को जनरेट करेगा, ओके। अब ये नया जो एप्लीकेशन हम लोगों ने बनाया है उसका हम लोगों को कुछ पैरामीटर सेट करने हैं। आप लोग सोचेंगे सर पहले भी जब से यही चल रहा था, ये इसको बहुत देर से चल रहा है। तो ये जब एक बार क्लियर हो गया ना आप लोग को, तो फिर प्रोग्राम बनाने में आसानी हो जाएगी, एकदम ईजी रहेगा, ठीक है। So the very first parameter which we have to set for this application is the packet। हमारे इस जो एप्लीकेशन का जो ट्रैफिक जनरेट होगा, तो ट्रैफिक बेसिकली क्या है, पैकेट्स है। वो पैकेट की साइज क्या रहेंगी, इस CBR0 के एप्लीकेशन की जो ट्रैफिक है उसकी जो पैकेट साइज रहेंगी, सेट पैकेट साइज ऑफ 500। तो 500 KB का एक पैकेट आपका रहेगा, ठीक है। आप चाहे तो उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, पहला पैरामीटर। सेकंड, इंटरवल, एक पैकेट जाने के बाद में जो दूसरा पैकेट जनरेट होगा दोनों के बीच में इंटरवल कितना होना चाहिए, तो हम लोगों ने सेट किया 0.005 सेकंड का इंटरवल होना चाहिए, ठीक है। इंटरवल भी आप इसको हम लोग चेंज करेंगे तो देखना आउटपुट में भी चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद में अब ये CBR आपका अभी एलोन है, ठीक है। क्या करना है, जिस तरीके से
we have attached UDP that is agent with the node, उसी तरीके से हम लोग को इस एप्लीकेशन को क्या करना है, अटैच करना है। किसके साथ में अटैच करना है, इस एजेंट के साथ में अटैच करना है, ठीक है। तो एजेंट के साथ में अटैच करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। मतलब ये मैनेजर वाला अभी कंपनी के लोगों को जानता है, ठीक है, तो कंपनी वाले उसको माल देंगे, ठीक है, उसको गुड्स देंगे, उसको पैकेट देंगे, उसको सामान देंगे, ठीक है, वो सारी चीजें उसको देंगे। तो ये सीबीआर समझ लो तुम्हारी कंपनी है। तो अटैच करना, जैसे हम लोग ने दोनों को अटैच किए वैसे इन दोनों को भी अटैच करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर CBR 0 अटैच एजेंट UDP 0। तो एजेंट अटैच, हम लोगों ने एजेंट किसमें अटैच किए, किसको अटैच किए हम लोगों ने, CBR 0 को अटैच किए, CBR 0 को अटैच किए, किसके साथ में अटैच किए, UDP 0 के साथ में अटैच किए। सिंटेक्स आ रहे हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट बिकॉज यू आर लर्निंग दिस लैंग्वेज फॉर द फर्स्ट टाइम, सो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम एंड थोड़ा सा, लेकिन है सिंपल, कुछ ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं आपको रहेगी, ठीक है। तो भाई साहब ट्रैफिक जनरेट आपका पूरा सामान क्रिएट हो गया, पूरा सेटअप रेडी हो गया, ठीक है। नाउ योर N0 विल बी एबल टू जनरेट द ट्रैफिक, ठीक है, जो कि आपका CBR जनरेट करेगा। एंड नाउ इट इज अटैच विद योर UDP दैट इज एजेंट। तो एजेंट के साथ में अटैच होने की वजह से ये ट्रैफिक आपका एजेंट क्या करेगा, सेंड करेगा, किसको सेंड करेगा, N1, बिकॉज ये आपका N0 क्या आपका ओनर है। अरे भाई N0 क्या है आपका, देखो मैं अभी हर एक को मैं कोरिलेट कर रहा हूँ। N0 क्या आपका ओनर है, मतलब कंपनी का ओनर है। UDP क्या है, मैनेजर है। और CBR क्या है आपका, जो जिसको हम लोग बोलेंगे गुड्स है, ठीक है, जो पैकेट्स है, और जिसको हम लोग बोलेंगे माल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर सेटअप हो गया। तो CBR विल जनरेट ट्रैफिक फॉर यू, देन क्या करेगा मैनेजर, क्या करेगा मैनेजर, उस ट्रैफिक को क्या करेगा, सेंड करेगा, किसको सेंड करेगा, दूसरे ओनर को, दूसरी कंपनी को सेंड करेगा। या कुछ ऐसा होगा UDP आगे फॉरवर्ड करेगा उस पैकेट को, उस ट्रैफिक को N0 को फॉरवर्ड करेगा। कभी आपने देखा है ऐसा कि जो ओनर है तो वो माल ले जाकर दे रहा है दूसरी कंपनी में, यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है, ऐसा कुछ देखा है आपने, नहीं। सारा काम कौन करता है, मैनेजर करता है। मैनेजर किनसे करवाएगा, मैनेजर अपने छोटे लोगों से करवाएगा, बट ओनर इज नॉट गोइंग टू डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद अदर कंपनी, ठीक है। तो UDP जो आपका मैनेजर है, UDP जो आपका एजेंट है, ये क्या करेगा, इस ट्रैफिक को सेंड करेगा। हम लोग देखते हैं अगले इसके अंदर। यहाँ तक क्लियर है आपको। सबसे पहले वापस से हम लोग आते हैं बाहर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एजेंट, हर नोड के ऊपर एजेंट क्रिएट करना जरूरी है, ठीक है, हर नोड पर एक एजेंट क्रिएट करना जरूरी है। So it is compulsory to create an agent on each and every node. So that what we have created over here. And after that we have attached this node and this agent. पहला काम ये हुआ। दूसरा काम ये हुआ कि हम लोग को CBR ट्रैफिक सोर्स क्रिएट करना है। ट्रैफिक सोर्स जहाँ से ट्रैफिक जनरेट हो और हम लोग को दिखे कि हाँ ट्रैफिक यहाँ पर क्रिएट हो रही है, ट्रैफिक जा रही है। तो वो ट्रैफिक को क्रिएट करने के लिए, जनरेट करने के लिए वी नीड अ CBR ट्रैफिक, ठीक है, जो कि कांस्टेंट बेस रेट की ट्रैफिक जनरेट करता है, ठीक है, विच इज अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन जो कि ट्रैफिक के अंडर में आता है। और ये CBR है, मतलब कि कांस्टेंट बेस रेट की है। इसकी पैकेट साइज होगी 500, इसका जो इंटरवल टाइम होगा 0.005, और दोनों को आपने अटैच भी कर दिया। यहाँ तक क्लियर है सबको? आई होप कि सबको यहाँ तक क्लियर रहेगा। अच्छा, अब आपके जो ट्रैफिक है वो यहाँ से जनरेट होके जाएंगी, किसके पास में जाएंगी, N1 के पास में जाएंगी। तो N1 के पास में भी तो कोई नहीं, मालूम पड़ा कंपनी बंद पड़ी है, तो माल आपका किधर जाएंगे, आपका यहाँ से आपने माल भेज दिए, कंपनी N1 को माल भेज दिए, लेकिन कंपनी पड़ी है बंद, कोई ना कोई मैनेजर है, ना कोई बंदे हैं काम करने वाले, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। कौन लेगा इस माल को, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ, आपको वहां पर भी एजेंट डालना पड़ेगा, ठीक है, कोई ना कोई एजेंट आपको वहां पर भी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इन दैट केस व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग अ नल एजेंट। तो नल एजेंट जिसको हम लोग ट्रैफिक सिंकर भी बोलते हैं, जो कि ट्रैफिक जो भी आएंगी वो ट्रैफिक को सिंक करेगा, ट्रैफिक को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। So N1 is at N1 we are going to create a null agent, okay। तो ये null agent, जिस तरीके से हम लोग N0 पर हम लोगों ने एक UDP एजेंट बनाए थे, जिस तरीके से हम लोगों ने N0 पर एक UDP एजेंट बनाए थे, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर हम लोग N1 के पास एक नल एजेंट बना रहे हैं। अगर चाहे तो हम लोग UDP एजेंट भी बना सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हम लोग एक नल एजेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो नल एजेंट यहाँ पे हम लोग ने बनाए, यू कैन सी set null 0, it's a new agent
ऑफ टाइप नल, ठीक है। ये ना यूडीपी टाइप का है ना ही टीसीपी टाइप का, ये कौन से टाइप का है, नल टाइप का है, ठीक है। एंड दिस नल एजेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रैफिक सिंकर, जो कि ट्रैफिक को क्या करता है, सिंक करता है, ट्रैफिक को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ओके। ये डन हो गया। अब जब नल एजेंट, आफ्टर क्रिएटिंग दिस नल एजेंट यू हैव टू अटैच दिस नल एजेंट विद द नोड आल्सो, ठीक है। So now the second responsibility we have is that we have to attach this n1, this agent that is null, इस एजेंट को इस नोड के साथ में अटैच करना जरूरी है, ठीक है। So as we do, we have already seen the syntax, that is ns अटैच एजेंट। कौन से एजेंट को अटैच करो, नल जीरो को अटैच करो, किसके साथ में अटैच करो, n1 के साथ में अटैच करो, ठीक है। ये भी हो गया अटैचमेंट आपका, यहाँ तक आपका सिनेरियो बन गया। इसको हम लोग बोलेंगे सिनेरियो, क्या बोलेंगे इसको, सिनेरियो, बिकॉज दिस इज द सीन, जस्ट अ सीन, ओके। दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी नहीं है ये, दिस इज अ काइंड ऑफ सिनेरियो, दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी तो अभी होंगी, पिक्चर अभी चालू होंगी, बट नाउ दिस इज द सिनेरियो, दिस इज द जस्ट वी कैन से द सिचुएशन, ओके। यहाँ तक क्लियर है सबको, प्लीज लेट मी नो यहाँ तक सबको क्लियर है या नहीं। यस सर, क्लियर है। ओके, ठीक है। सो पिक्चर साफ है, दो नोड बना है, दोनों नोड के ऊपर हम लोगों ने दो एजेंट लगाए। जो एजेंट हमारा n0 है, तो उस एजेंट को हम लोगों ने उसके ऊपर ट्रैफिक सिंक मतलब एक ट्रैफिक जनरेटर भी लगाए, और यहाँ पर हम लोगों ने ट्रैफिक सिंकर लगाए कि ये ट्रैफिक भेजेगा, ये ट्रैफिक सिंक करेगा, ठीक है। ऐसा अरेंजमेंट हम लोगों ने किया है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। इतना 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 हो गया। अब उसके बाद में, हाँ ये हो गया ना, हाँ इसके बाद में हम लोग को अभी ट्रैफिक हम लोगों ने अच्छा दोनों को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो भाई साहब अभी हमारा मैनेजर दूसरे किसी कंपनी के मैनेजर से बात किए बगैर माल भेज देगा या फिर पहले उसको कांटेक्ट करेगा। तो फॉर एग्जांपल आई एम द मैनेजर ऑफ वन कंपनी, तो मैं यहाँ से माल भेज रहा हूँ दूसरी कंपनी को, ठीक है। सो दूसरी जो कंपनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू कम्युनिकेट विद दैट मैनेजर कि सी या आई एम सेंडिंग दिस मच अमाउंट ऑफ माल फ्रॉम माय कंपनी टू योर कंपनी, ठीक है, विल यू एक्सेप्ट इट। वो बोलेगा हाँ आई विल एक्सेप्ट इट, जस्ट सेंड इट, ओके। तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, मतलब दोनों के बीच में जो कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। सो फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू, we need to connect our traffic source and we need to connect our traffic sinker। मतलब हमारा इन शॉर्ट हमारा यूडीपी और हमारा नल दोनों को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। एंड फॉर दैट दिस पर्टिकुलर डॉटेड लाइन हैज बीन शोन, ठीक है। तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, $ns कनेक्ट कीवर्ड, यूडीपी 0 नल 0, हो गया भाई साहब कनेक्ट। कितना सिंपल था बोलो, दोनों को कनेक्ट कर दिए। तो दोनों को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यूडीपी 0 नल 0, मतलब दोनों मैनेजर का आपस में कांटेक्ट हो गया है। अब चलो माइलस्टोन हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। हम लोग अपने इवेंट्स को शेड्यूल करते हैं, इवेंट्स को क्या करेंगे, शेड्यूल करेंगे। सिचुएशन तो बन गई है, अब इवेंट्स हमको रखना है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, 1 बटन 2 बटन 3 4 बटन, ठीक है। तो नाउ दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द सिनेरियो। when you will click on the first button then एक अलग स्क्रीन ओपन होना चाहिए, so that is an event। स्क्रीन नंबर 1 ओपन होना चाहिए। बटन 2 को क्लिक करेंगे तो स्क्रीन नंबर 2 ओपन होना चाहिए, so that is an event, okay। so you can just differentiate the difference between the events and the scenarios, okay। तो सिनेरियोज आर द स्टैटिक मोशन, मतलब के नॉन मोशन पिक्चर्स बोलते हैं जिसको हम लोग। तो स्टैटिक पिक्चर आपको दिखेगी, बट इवेंट्स जिसके अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, ठीक है। एक्शन का रिएक्शन होता है इवेंट्स के अंदर। तो $ns देखो हम लोग शेड्यूल कर रहे हैं, कैसे शेड्यूल कर रहे हैं ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। $ns एट 0.5 सेकंड पे क्या होना चाहिए, 0 सेकंड पे स्टार्ट हुआ, 5 सेकंड पे कंप्लीट होगा। ध्यान से अगेन बोल रहा हूँ, 0 पे स्टार्ट हुआ, 5 सेकंड पे एंड होगा, मतलब टोटल 5 सेकंड का आपका एनिमेशन है, ठीक है। तो 0 के बाद में 0.5 सेकंड पे क्या होगा, CBR 0 क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, ट्रैफिक जनरेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। जनरेट करना स्टार्ट किया, 4.5 सेकंड पे क्या करेगा, CBR 0 ट्रैफिक जनरेट करना बंद कर देगा, ठीक है।
और 5.0 मतलब 5 सेकेंड पे क्या हो जाएगा, वी विल कॉल द फिनिश प्रोसीजर। और जब फिनिश प्रोसीजर कॉल होगा तो सब कुछ वाइंड अप, चलो भाई सब पैकअप सब पैकअप हो जाएगा, ठीक है। तो 0 पे स्टार्ट हुआ, 0.5 पे हम लोगों ने ट्रैफिक जनरेट करना स्टार्ट किए, CBR 0 को बोले बिकॉज CBR 0 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। देन 4.5 सेकेंड पे हम लोगों ने इसको स्टॉप करने का बोले, देन 5.0 पे उसने फिनिश प्रोसीजर कॉल किया एंड NS रन, देखो लास्ट में NS रन भी है, NS रन, ठीक है। अब इसको हम लोग लेते हैं अपने प्रोग्रामिंग में लेते हैं, ठीक है। एवरीवन कीप योरसेल्फ रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो हमारे पास में ये दो ये हो गए, लिंक भी क्रिएट हो गई है, यहाँ पर हम लोग को बीच में एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं देखता हूँ मेरे पास में अगर ऑलरेडी है तो मुझे प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं मुझे लिखना पड़ेगा शायद प्रोग्राम फॉर TCL सिंपल, नहीं मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हो गया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मैंने बना लिया हूँ, अब मुझे लिंक्स बताना है, ठीक है, मुझे लिंक्स बताना है। तो यहीं से मैं कॉपी करते जाऊंगा बिकॉज हम लोग ने यहीं से सब कुछ किया है। तो लिंक क्रिएट किया हम लोगों ने, लिंक कहाँ है, लिंक कहाँ है, फिर अब लिंक के बाद में हम लोग को ट्रैफिक जनरेट करना है, ठीक है। तो मैं इसी को देखो आपके सामने कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। तो भाई साहब हम लोगों ने UDP 0 को एजेंट हम लोगों ने क्रिएट किया और उसको अटैच किया, इतना काम हुआ, ठीक है। उसके बाद में दूसरा काम हम लोग को क्या करना है, उसके ऊपर ट्रैफिक सोर्स जनरेट करना है, ठीक है। तो ट्रैफिक सोर्स भी जनरेट कर दिए, ट्रैफिक सोर्स भी हो गया जनरेट। उसके बाद में तीसरा काम ये काम करना था, तो चलो इसको भी कर लेते हैं, जो कि हम लोग को N1 के ऊपर नल एजेंट बनाना था, तो यहाँ के बजाय मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है। तो ये UDP 0 हम लोग ने एज अ एजेंट बनाया जो कि UDP का एजेंट है N0 पर, ओके, और उसको अटैच किया है। और N1 के ऊपर हम लोगों ने एक नल एजेंट बनाया है और नल एजेंट को अटैच किया है N1 से, ओके। ये दोनों हम लोगों ने एजेंट्स बनाए हैं, एक UDP एजेंट और एक नल एजेंट, ओके। फिर उसके बाद में हम लोगों ने CBR ट्रैफिक जनरेट किया इस कोड के थ्रू, और उसके बाद में फिर नेक्स्ट नल एजेंट भी बना दिया ना, हाँ बस, हाँ ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट ये वाला हम लोग वो कर लेते हैं, ट्रैफिक सोर्सेज को आपने कनेक्ट किया, ट्रैफिक सोर्सेज को आपने कनेक्ट किया और ये शेड्यूल किया। शेड्यूल करने के बाद में देखो ये मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा बिकॉज ये ऑलरेडी स्टेटमेंट अंदर आ चुका है, ठीक है। तो शेड्यूल कैसे हमारा, वापस से मैं वो बोल रहा हूँ, 0 से स्टार्ट होगा, 0.5 पे CBR 0 की ट्रैफिक स्टार्ट होगी, ट्रैफिक जनरेशन स्टार्ट होगा, 4.5 के ऊपर CBR 0 स्टॉप हो जाएगा एंड 5.0 पे फिनिश प्रोसीजर कॉल होगा। तो फिनिश प्रोसीजर कहाँ पर है, यहाँ पर फिनिश प्रोसीजर कॉल होगा, पैकअप, ठीक है, सारा का सारा पैकअप। और ये हमारे सिमुलेशन को रन करने के लिए Ctrl S सेव किया आपके सामने मैंने। अब इसको हम लोग करते हैं रन, ठीक है, इसको करते हैं रन। दिस इज माई सैम्पल फाइल। तो NS स्पेस sample.tcl आपके सामने रन किया, एरर आ रहा है, कुछ तो एरर आ रहा है, कहीं पर प्रॉब्लम हुआ है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है F उसको नहीं मिल रहा है, सी दिस F यहाँ पे नहीं मिल रहा है। F हमारी ये हमारी ट्रेस फाइल है, तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो भाई साहब हमने जो फाइल बनाई थी वो NF बनाई थी, यहाँ पर देखो, यहाँ जो हम लोगों ने फाइल बनाई थी वो NF बनाई थी, और यहाँ पर हम लोगों ने जो यूज किए हैं, कहाँ पर यूज किए, नहीं रुको, अभी देखते हैं क्या इशू है। NF सब तो सही तो है बराबर। एक बार वापस देखते हैं क्या इशू है। एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स आफ्टर क्लोज कोट, लाइन 43 पे एरर दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं। हाँ देखो यहाँ पर है, देखो जब भी हम लोग कोड कॉपी करते हैं ना वहाँ पर एरर आना है, इसके जो डबल कोड्स है उसके अंदर एरर आ ही जाता है। देखो अभी
ये वाले डबल कोड में और ये वाले डबल कोड में फ़र्क है, ठीक है। तो वी नीड टू टेक अटमोस्ट केयर व्हाइल कॉपिंग द डेटा फ्रॉम एनी पीडीएफ फाइल और एनीथिंग एनीवेयर, ठीक है। तो जो डबल कोड्स होते हैं उसमें अक्सर करके प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो भाई साहब मैं रन कर रहा हूँ आपके सामने, वापस से रन हो गया, विदाउट एनी एरर रन हो गया आपके सामने। इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, इसको मैं ज़रा एडिट करके पहले ज़रा अच्छे से ज़रा मैं दूर दूर रख लेता हूँ ताकि हम लोग अच्छे से दिखे। आई होप दैट दिस इज विजिबल टू एवरीवन, ओके। दिस इज माय, अच्छा सॉरी, हमारा N0 इधर है, N1 इधर है, ठीक है। ध्यान से, हाँ, मतलब आप लोग अलग अलग ना कर दे इसको, ओके। तो ये भाई साहब जो हमारा N0 है ये N1 है, ठीक है। इसको मैं वापस से नॉन एडिटेबल कर देता हूँ। यू नो दिस इज माय, जिसको हम लोग बोलते हैं सीक बार, यहाँ से मेरा टाइम स्टार्ट होगा, नीचे मैं कर्सर दिखा रहा हूँ। द प्ले स्टॉप बटन, प्रीवियस वगैरह का बटन है, आउट डॉट नेम फाइल है हमारी, दिस इज द टाइम। जब मैं प्ले करूंगा तो यहाँ पे टाइम आएगा। एवरीवन प्लीज फोकस हो भैया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग आउटपुट देख रहे, इतनी सारी जो हमारी पौने घंटे की 1 घंटे की जो मेहनत है वो अभी यहाँ पर हम लोग को आउटपुट दिखने वाला है, ठीक है। एंड दिस इज द स्पीड फ्रॉम विच वी कैन सी द आउटपुट। पहले मैं रन करता हूँ, देखते हैं, ठीक है। लेट अस स्टार्ट प्ले। नीचे देखो टाइम रन हो रहा है, 0.1 सेकेंड, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। जैसे ही 5 हुआ पैकेट जाना शुरू हो गए। यू कैन सी द पैकेट गोइंग ऑन। यहाँ पर अगर आपको स्पीड कम करना है तो स्पीड कम कर सकते हैं इस पर्टिकुलर बटन के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि आपके जो पैकेट्स बन के आ रहे हैं, ठीक है। आपने मेंशन किया था एक एक चीज को आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। क्या क्या कंपेयर कर सकते हैं? द पैकेट साइज इज 500, तो 500 के हिसाब से आपको पैकेट दिख भी रहा है, ठीक है। पहला नोटिस, पहला ऑब्जर्वेशन। सेकंड है आपका जो इंटरवल है वो 0.005 का इंटरवल है, ठीक है। तो एक के बाद में एक जो पैकेट आ रहे हैं वो 0.005 के इंटरवल से आ रहे हैं, सेकंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन है और क्या है, 0.5 पे स्टार्ट हुआ है, 4.5 पे एंड होगा, 5.0 पे कंप्लीट बंद हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं वापस से। तो ये हमारा टाइम चल रहा है, देखो मैंने इसको स्लो कर दिया हूँ, 199.5 US, मतलब U सेकेंड्स के हिसाब से चल रहा है। बहुत स्लो कर दिया हूँ मैंने, आपको थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, 2 मिली सेकेंड से फास्ट जा रहा है। अब देखो जो नीचे मेरा चल रहा है ना टाइम, जो मेरा भाग रहा है नीचे जो टाइम, यहाँ देखो ये नीचे, आई होप यू कैन सी इट। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो मुझे पूछो, बताओ, ठीक है, हम लोग उसके बारे में। ये हमारा 0 से स्टार्ट हुआ, जो ब्लू लाइन दिख रहा है आपको, ब्लू लाइन, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 आगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाके वो बंद हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको स्टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसको मैंने होल्ड किया तो वैसे आपका होल्ड हो गया, छोड़ेंगे तो वापस आगे भाग जाएगा। हम लोग ने रोका, स्टॉप कितने टाइम पे किया है? जो जनरेशन, ट्रैफिक जनरेशन है वो कौन से टाइम पे स्टॉप होंगी? 4.5 पे स्टॉप होंगी। यहाँ पर देखते जाओ, यहाँ पर देखो, जहाँ पर मेरा कर्सर है, वहाँ पर देखते जाओ। दिस इज 3.7, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.5 पे हम लोगों ने बंद कर दिए। लास्ट में 5 पे जाके वो बंद हो जाएगा, ठीक है। 4.5 तक ही गया ये, एक्चुअली मुझे भी समझ नहीं आया लास्ट तक क्यों नहीं जाता है। इसको हम लोग शायद थोड़ा सा वो कर भी सकते हैं, लेकिन छोड़ो, हमारा काम हो रहा है ना बस। तो 4.5 पे क्या हुआ है, एग्जैक्टली 4.5 पे बंद हुआ है। 4.48 है, तो थोड़ा मैं देखो थोड़ा स्लो कर देता हूँ ताकि आप लोग इजीली देख पाए। 4.48, 4.49 हो गया। 4.5 पे आपके CBR ने ट्रैफिक जनरेट करना बंद कर दिया, ठीक है। और 5.0 पे वो बंद हो जाएगा। ये है हमारा एनिमेशन। तो मैं बंद करता हूँ अभी, तो मिनिमाइज करता हूँ, इसको मिनिमाइज करता हूँ, इसको मिनिमाइज करता हूँ। पहले बताओ मुझे समझ में आया आप लोग को यहाँ तक? एवरीवन प्लीज Yes, लेट sir. मी नो। हाँ सर। ओके, आई होप सबको ये चीज़ समझी है कैसे करना है। बिकॉज ये आपके लिए एक न्यू लैंग्वेज है, दैट इज TCL टूल कमांड लैंग्वेज, जिसके अंदर हम लोग को नोट्स वगैरह, यानी कि आपको इवेंट्स एंड सिनेरियोज के थ्रू आपको सब चीज़ बताना पड़ती है, ठीक है। तो इस बार मैं इवेंट्स, ओके, जो मैंने प्ले किया, 2 नोट दिख रहे थे, दोनों कनेक्टेड थे।
So that was my scenario, okay. And when I played that particular event, जो भी मेरा था, तो 0.5 सेकेंड पे उसने ट्रैफिक जनरेशन स्टार्ट किया, तो क्या होना शुरू हुआ, फिर इवेंट जनरेट होना शुरू हो गए, इवेंट्स आपको दिखेंगे, ठीक है। सम इवेंट्स वर हैपनिंग, ठीक है। पहले खाली सिनेरियोस थे, फिर इवेंट्स परफॉर्म होना शुरू हो गए, ठीक है। तो यहाँ तक ये हमारा एकदम बेसिक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इसके आगे मेरे पास में और भी है, बिकॉज हम लोग ज़्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हमारा ये एक्सपेरिमेंट में हमको खाली बस थोड़ा सा 1-2 एक्सपेरिमेंट बताना थे, लेकिन मैंने आपको 2 कंप्लीट सेशन लेके मैंने आपको ये चीज़ बताया हूँ। तो आपके सामने मैं एक कुछ और एग्जाम्पल्स भी बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया और मिल जाए। मेरे पास में कुछ एग्जाम्पल्स है, मैं एग्जाम्पल्स आपको बताता हूँ। सी, देखो ये वाला पार्ट तो सेम है, ठीक है। दिस इज अनदर एग्जांपल, ठीक है। मैं आपको दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ। सो हियर वी कैन डिफाइन कलर्स आल्सो, ठीक है। मतलब जो डेटा फ्लो जो आपका जो हो रहा है ना, उसको आप कलर भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि कलर 1 मेरा ग्रीन है, कलर 2 मेरा रेड है, ठीक है। उसके अलावा चलो यहाँ पर मैंने 4 नोड्स क्रिएट किया हूँ, ठीक है। वहाँ पर मेरे कितने नोड थे, ओनली 2 नोड्स वर देयर, बट हियर आई एम हैविंग 4 नोड्स, ओके। अब इन चारों नोड्स के बीच में क्या करना है, आपको लिंक क्रिएट करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली 4 नोड्स है, तो 4 नोड्स के लिए आपको कितनी लिंक लगेंगी, जैसे भी लिंक आप क्रिएट कर रहे हैं आपके हिसाब से आप बनाओ। तो दिस इज द डुप्लेक्स लिंक, N0 N2 के बीच में है, N0 N2 के बीच में लिंक है। दिस इज N1 N2 के बीच में है, N3 N2 के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से है। सी, दिस इज द SQF जो टाइप का मतलब है, जो कि जैसा हम लोग का ड्रॉप टेल है, वैसा हम लोग का मतलब SFQ भी है, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रैटेजी। तो ये आपने लिंक भी क्रिएट कर दी है। उसके बाद में ओरिएंटेशन एक और चीज होती है, मतलब आपको अपने नोट्स को कहाँ प्लेस करना है वो भी आप मेंशन कर सकते हो। लाइक कि भाई देखो, NS ये डुप्लेक्स लिंक ऑफ, ये इसका सिंटैक्स है। देन N0 N2 ओरिएंट राइट डाउन, मतलब N0 को मतलब N0 के बाद में N2 को कहाँ रखना है आपको, ओरिएंट करो राइट डाउन में, मतलब राइट साइड के डाउन में, मतलब नीचे। N0 ऊपर रहेगा, उसके नीचे N2 रहेगा, दिमाग में रखना। जब हम लोग आउटपुट रन करेंगे तो चेक कर लेना। N1 के राइट अप में N2 रहेगा, N1 के राइट अप में क्या रहेगा, N2 रहेगा। मेरे ओरिएंटेशन आपको शायद समझ में ना आए, लेकिन उसमें आप देख लेना, ठीक है। और N2 के राइट में N3 रहेगा। सो दिस इज द ओरिएंटेशन काइंड ऑफ थिंग। ये नहीं भी करे तो चलेगा, आपकी मर्जी, ठीक है। उसके बाद में देखो, यहाँ पर हम लोगों ने CBR ट्रैफिक वगैरह क्रिएट किए हैं। यहाँ पर फिर हम लोगों ने UDP एजेंट वगैरह क्रिएट किए, सब जो भी हम लोग करते हैं। आप इसका शेड्यूल देख लो खाली, ये हम लोग का है भी नहीं, खाली आपको फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट ही करना है, जो मैंने अभी आप लोगों को करवाया हूँ वही करना है बस, ठीक है। 0.5 पे CBR0 स्टार्ट होंगे, 0 पे स्टार्ट हुआ, 0.5 पे ट्रैफिक जनरेशन CBR0 स्टार्ट करेगा, ठीक है। 1 पे CBR1 स्टार्ट करेगा, मतलब दूसरा CBR1 स्टार्ट करेगा, ठीक है, मतलब 2 लोग स्टार्ट करेंगे। फिर 4.0 पे CBR1 स्टॉप कर देगा, और 4.5 पे CBR0 स्टॉप करेगा, ठीक है। ये सिनेरियो को, ये इवेंट को आप लोग ध्यान में रखो। इसको हम लोग रन करते हैं, 2.tcl को जरा रन करते हैं आपके सामने। देखिए रन। ओरिएंटेशन ध्यान रखना भाई लोग, ओरिएंटेशन क्या है एक बार ध्यान से वापस देख लो कि N2 को आपने राइट डाउन में रखा है, N2 को राइट डाउन में रखा है। N2 आपका देखो N0 के राइट डाउन में, मेरा कर्सर ध्यान से देखना, N0 के राइट डाउन में क्या है, N2 है। देखो यहाँ पर N0 के राइट डाउन में N2 है आपका, ओके। उसके बाद में, अरे ये गानू, उसके बाद में N2 क्या, उसके बाद में N1 के राइट अप में N2 है, N1 के राइट अप में N2 है, तो ये N2 आ गया। और N3 जो आपका है वो N2 के राइट में, इस तरीके से आपका ये वाला हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे शो कर रहे हैं, जो मैं प्ले करता हूँ। स्पीड फास्ट है, जरा ध्यान से एकदम देखना, 2 मिलीसेकंड की स्पीड है। हुआ 0.4, 0.5, 0.5 पे देखो एक हरे कलर का, ग्रीन कलर का ट्रैफिक जनरेट शुरू हुआ। क्यों ग्रीन कलर का हुआ, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया है, कलर 1 ग्रीन, कलर 2 ग्रीन।
अब देखो, रुको रुको, अरे हम लोगों ने पिक्चर थोड़ी सी मिस कर दी। उसके बाद में जैसे ही वो 1 मिली सेकेंड हुआ तो वैसे ही आपका रेड कलर के, मतलब इसने भी ट्रैफिक जनरेट शुरू किया। तो अब इससे हमारा नुकसान क्या हुआ, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर अब मैं थोड़ा स्लो कर रहा हूँ, स्लो मो में, स्लो मोशन, इतना भी स्लो मोशन नहीं चाहिए हम लोग को। मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ आप लोग को, इसे टोके, बस ये हम लोग का एक बार हो जाए। देखो, अब जब दो नोड की तरफ से पैकेट आएंगे तो जाहिर बात है आपका नोड 2 इससे पैकेट लेगा या इससे पैकेट लेगा, उसके रिजल्ट में क्या हो जाएगा, पैकेट आपके ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। एंड दैट ड्रॉपिंग यू कैन एक्चुअली सी, ओके, कि लाल कलर वाले एंड ग्रीन कलर वाले पैकेट्स आर गेटिंग ड्रॉप्ड एट द नोड 2, ओके। ये एक जस्ट समझाने के लिए एनिमेशन करके बताना है कि सी वी हैव टू सोर्सेज, दैट इज N0 एंड N1। दो सोर्सेज की तरफ से पैकेट्स आए तो N2 उनको संभाल नहीं पाया और वहां पे पैकेट ड्रॉप होना शुरू हो गए। कुछ पैकेट जा रहे हैं, कुछ पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं, कुछ पैकेट जा रहे हैं, कुछ पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं। ठीक, ये एक आपको एग्जांपल मैंने बताया। इसको बंद किया। एक आपको मैं और बताता हूँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको समझ जाए, कम से कम थोड़ा और समझे कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। एक और मैंने प्रोग्राम बनाया था लास्ट वालों को बहुत थे प्रोग्राम, ठीक है। सो यू कैन सी दिस वन, थोड़ा मैं इसको एडिट करके आपके सामने कर लेता हूँ। ये आपका एक्चुअली राउटिंग वाला है, ये जो प्रोग्राम है राउटिंग वाला है कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग आपका कैसे काम करता है उसके लिए था। सो इसको डायरेक्ट मैं प्ले करता हूँ, आपको बता दूंगा। ये जो अभी हुआ ना आपके सामने, जो हुआ ना अभी, तो ये इसका मैं रुको, थोड़ा सा मैं पीछे आता हूँ। सबसे पहले तो ये हुआ कि भाई साहब क्या कर रहे हैं, जो लाइन आपको दिख रही है ना वर्टिकल लाइन, ये रूट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, रूट फाइंड कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ जाना है उनको, आपको अभी समझ में आ जाएगा। मैं प्ले करता हूँ। ये इसने पहले रूट फाइंड आउट किया कि भाई किसकी वेट किसका है, कौन सी लिंक का वेट कितना है, कहाँ से जाना चाहिए, उसके हिसाब से इसने चेक किया, ठीक है। उसके बाद में आपकी ट्रैफिक जनरेट होके ट्रांसमिशन होना शुरू हो जाएगा। कहाँ से कहाँ हो जाएगा, हम लोग इसको थोड़ा देखते हैं। सी, 0 से पैकेट निकले हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं बोलो, 3rd पे जा रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ हम लोग सेंड कर रहे हैं, हम लोग को 1 को 2 को नहीं सेंड करना है, हम लोग को 3rd को सेंड करना है। तो ये भाई साहब ने चेक किया, तो चेक करने में पता चला कि यहाँ से ये वाला जो रूट है 0 to 1 to 2 to 3, ये वाला जो रूट है दिस इज द बेस्ट रूट, जिसको हम लोग बोलते हैं सस्ता सुंदर टिकाऊ रास्ता। हम लोग का भी राउटिंग एल्गोरिथम आने वाला है ना, तो वो राउटिंग एल्गोरिथम का एग्जांपल है, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट रूट व्हाइल गोइंग फ्रॉम 0 to 3, ठीक है। यहाँ से क्यों नहीं गया वो, क्योंकि हो सकता है यहाँ से रूट लंबा हो, ठीक है, यहाँ से रूट क्या हो, लंबा हो, है ना। आप लोग देख भी सकते हैं बीच में खाली 2 नोड पड़ रहे हैं, यहाँ पे 3-3 नोड पड़ रहे हैं बीच में, ठीक है। तो ये हमारा काम हुआ। अब हम लोगों ने कहानी में एक ट्विस्ट रखा है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे थोड़ी देर के बाद में, एवरीवन प्लीज फोकस, बिकॉज आगे चल के आपको काम आएगा। इवन आई हैव नॉट इंक्लूडेड दिस इन योर एक्सपेरिमेंट लिस्ट, बट फिर भी काम की चीज़ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाली लिंक को, कोई भी एक लिंक को हम लोग ब्रेक डाउन कर देंगे, उसको क्या करेंगे हम लोग डाउन कर देंगे। चलो थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। थोड़ा स्लो में जाओ तो ज़रा देखने में मज़ा भी आएगा। 4 बज गए लेकिन स्टिल मैं आपका ले रहा हूँ, थोड़ा सा ये हो जाए हमारा तो कवर हो जाएगा। जो ब्लू लाइन दिख रही है ना, ब्लू वर्टिकल लाइन, वहाँ पर आपको हम लोगों ने क्या किया है, एक काम करो, इसको स्टॉप करता हूँ और 2 को आपको मैं ओपन करके बताता हूँ। 2 कहाँ पर है भाई साहब, जी 2 कहाँ पर है, 2 ये है। तो हम लोगों ने जो शेड्यूल किया है ना, उसके हिसाब से शेड्यूल किया है। 2 नहीं है ये आपकी फाइल अलग है कौन सी, तो ये 2 नहीं है, ये 3rd है, वो तो बोलो मैं 3rd है आपकी फाइल। 3rd ओपन करता हूँ, आपको मैं शेड्यूल बताता हूँ, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। सी 0.2 पे ट्रैफिक स्टार्ट हुई, ठीक है, 0.2 पे ट्रैफिक स्टार्ट हुई है। उसके बाद में मैंने क्या किया, आरटी मॉडल एट 1 मिली सेकेंड पे क्या होना चाहिए, डाउन करो। क्या डाउन करो,
N1 और N2 के बीच में जो लिंक है उसको डाउन करो, ठीक है। ये हम लोग देखते हैं डाउन होती है कि नहीं लिंक ये हमारी। 1 मिली सेकेंड पे ना, अभी टाइम हुआ नहीं है, अभी 0.8 हुआ है। चलो प्ले करते हैं। तो जैसे ही 1 मिली सेकेंड का टाइम कंप्लीट होगा तो ये वाली जो लिंक है 1 और 2 के बीच की लिंक ये वापस डाउन हो जाएगी। तो आपके डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम का काम ये होता है कि अगर कोई लिंक डाउन हो जाए तो उसके लिए ऑल्टरनेट रूट फाइंड आउट करना, ठीक है। तो वापस से प्ले करता हूँ मैं। 0.96, 0.97, 0.98, 0.99। देखो 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 यहाँ पर क्या हुआ। ये क्या हो गई आपकी 1 और 2 के बीच में जो लिंक है ये क्या हो गई, डाउन हो गई। इसके लिए उसको उसने कैसे शो किया, रेड लिंक के थ्रू शो किया, ठीक है। तो फौरन आपका जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम है वो एक्शन में आएगा और बोलेगा अरे यार ये तो प्रॉब्लम हो गया है, दोनों के बीच में का ब्रिज टूट गया, अब दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। तो उसने फौरन दूसरा रास्ता देखा तो उसको दूसरा रास्ता मिल गया, 0 to 6 to 5 to 4 to 3। ओके, तो ये रूट हम लोग को मिल गया। तो ये जैसी रूट मिला तो आप उसने क्या किया, पैकेट यहाँ से सेंड करना शुरू। इवन दो दिस पर्टिकुलर रूट इज अ लॉन्गर वन, बट हमारे पास में कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग काम करता है। ओके, उसके बाद में कहानी में और ट्विस्ट रखें। आरटी मॉडल एट 2 मिली सेकेंड अप कर दिए, N1 N2 की लिंक को हमने क्या कर दिया, अप कर दिया। तो क्या होगा, 2 मिली सेकेंड पे लिंक आपकी अप हो जाएंगी। तो मैं थोड़ा सा नजदीक में लेकर आता हूँ। अब देखते हैं 2 मिली सेकेंड पे क्या हुआ, 1.9, 1.96, 1.97, 8, 9, 2। वापस से आपकी लिंक अप हो गई तो उसने वापस से यहीं से सेंड करना, बिकॉज दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट एंड दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिमल रूट। ओके, ये है डेमोन्स्ट्रेशन है आपके डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। समझ में आया तो मुझे बताओ, रिप्लाई करो प्लीज। ओके, आई टुक स्टॉप ही नहीं हो रहा है।